Chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Look, in plants, the sexual reproduction occurs through the flowers. Flowers are the site of the sexual reproduction, which bears the male and female reproductive organs. Okay, so first let's understand that the flowers are an aid to sexual reproduction. Okay, the flowers are the site for the sexual reproduction. We can say that a flower is a site for sexual reproduction. So first let's understand the parts of the flowers. Okay, flowers bears the petals, beautiful petals. The colorful petals are present into the flowers, which attract us as well as it attracts the insects for the pollination. Right? We can say that the flowers are a part of our life. We can express our feeling through the flowers, like happiness, grief, mourning, that means a sadness, love, affection. This type of the feelings human beings express to the flowers, right? So flowers are the part of our life. Instead of this, it is play a very important role into the plants for the reproduction. So the petals are the very beautiful part of the flowers, which attracts the human beings as well as the insects and other organisms. And in flowers, the sepals are also present. So sepals are also present into the flowers. जो green color के leaves होते हैं flowers में नीचे की side, that is known as a sepals, जिसको collectively हम लोग calyx भी बोलते हैं. Then the male reproductive organ that is the stamen, and the female reproductive organ, that is the pistil, or we can also say that कार्पेल. ओके, तो ये मैंने फ्लावर के मेन पार्ट्स बताए. इसके अलावा भी इसमें थैलेमस प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द फ्लावर, एंड पेटियोल्स जो पेडिसल जो फ्लावर को बियर करके रखता है, वो स्मॉल ब्रांच हम बोल सकते हैं. Okay, so these are the main parts of the flowers. चलो अब हम उसका डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं. Okay, so these are the typical transverse section of the flower. So in this you can see
that this pink colored portion, it is the petals of the flowers. This green colored leaves type of the structure, it is the sepals of the flower. These are the small leaves. Okay, then look at here, this portion. ये पोर्शन को हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, जिसको हम लोग बोलेंगे सेपल, स्टेमेन। स्टेमेन जो है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है, वन इज द एंथर एंड अनदर वन इज द फिलामेंट। तो ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो एंथर का पोर्शन है और ये जो है ये फिलामेंट है। ओके, अब यहाँ पे सेंटर में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शो किया है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है पिस्टिल, ये उसका एंटीरियर रीजन है जिसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा, जिसके ऊपर आके पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे स्टिक होगी। ओके, देन ये पोलन ग्रेन में से बनेगा पोलन ट्यूब, जो ये स्टाइल में से पास ऑन होगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द स्टाइल, and at the end part it is the swollen, that is known as the ovary. Inside the ovary the ovule it is present, so this is known as the ovule. Okay, from these pollen grains the pollen tube it is generated and this pollen tube it is brings towards the ovule, वो ovule तक जाएगा। ओके, और ये पोलन ट्यूब्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे जो यहाँ से जाएंगे ओव्यूल के अंदर और देन आफ्टर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इट इज नोन एज अ थैलेमस, जिसके ऊपर ओवरी बियर होती है और जिसके ऊपर अदर फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो भी बियर होते हैं, उसको हम थैलेमस बोलते हैं। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है और ये है जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। क्लियर? चलो, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कौन सी इवेंट्स इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज आई हैव टोल्ड यू वो दो चीजों से बना हुआ है। फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकेंड वन इज द फिलामेंट। दिस इज द टू पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर एंड फिलामेंट। और यहाँ पे आपको जो डॉट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट्स को बियर करते हैं, इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। मतलब कि दिस इज द कॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो अब हम एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लुक एट हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। लुक, द एंथर इट इज जनरली बाइलोब्ड है। तो देखो यहाँ पे आपको दो लोब क्लियरली दिख रहे हैं, लोब 1 एंड लोब 2। इट इज जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। लुक, हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं इन फ्लावर एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? हम उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम का मतलब होता है whorls ऑफ स्टेमेंस। ओके, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम उसको गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में लिखा एंड्रोशियम, दैट मीन्स whorls ऑफ स्टेमेंस। ओके, सो एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। अब हम एंथर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो वो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, सो इसके अंदर अगर आप एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे आपको दो लोब क्लियरली दिखेंगे। सो यहाँ से मैं आपको बोलूँ सेंटर से,
तो ये हो गया लोब 1 एंड ये हो गया लोब 2, तो ये बाइलोब्ड हो गया. Each lobe having the 2 theca. So look at here, this is the theca number 1 and this is the theca number 2. So that's why it is known as a dithecus. क्या बोला जाएगा? Each lobe, it is a dithecus. Each lobe को हम क्या बोलेंगे? dithecus बोलेंगे. अगर मैं कलेक्टिवली होल एंथर की बात करूं तो होल एंथर कैसा होगा? इट इज अ टेट्राथिकस बिकॉज ये 1 and 2, 3 and 4. तो यहाँ पे आपको 4 थिका देखने मिलेंगे जिसकी वजह से हम इसको टेट्राथिकस भी बोलेंगे. Each lobe is the, remember one thing, each lobe is a dithecus and the whole anther is the tetrathecus. ओके, ये जो 2 लोब है एंथर के वो एक दूसरे से कनेक्टिव से कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो देयर इज अ कनेक्टिव विच इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लोब्स ऑफ द एंथर. अगर हम थीका को देखें तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन से आपको आउटर साइड से भी थीका 4 साइडेड मतलब कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. ठीक है, लुक, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन जो यहाँ से दिख रहा है. ठीक है, यहाँ से भी दिख रहा है, तो उसकी वजह से आपको इजीली यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 थिकास है और इस साइड भी 2 थिकास प्रेजेंट है. अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको 4 साइडेड स्ट्रक्चर दिखेगा जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है. ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स 4 साइडेड स्ट्रक्चर्स, ये जो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. Microsporangia bears the sporogenous tissue. Okay, so this is the microsporangia. ये जो आपको इंटरनल राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इंटरनल जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. This microsporangia is develops into pollen sacs. Microsporangia किसके अंदर डेवलप होता है? तो it develops into microsporangia develops into pollen sacs. Okay, so this microsporangia it is develops into pollen sacs जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जनरेट होंगे. पोलन सेक्स मतलब क्या? आगे जाके इसके अंदर जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू है, ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू में से बनेंगे पोलन ग्रेन्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 4 आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिनियस टिश्यू प्रेजेंट होगा. माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स में डेवलप होंगे एंड स्पोरेंजिनियस टिश्यू पोलन ग्रेन्स में डेवलप होंगे. क्लियर? चलो, अब हम इसका माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, देखो ये जो है वो पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 स्ट्रक्चर्स. ओके, तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये किससे बना हुआ होता है. चलो मैं एक और बार आपको शो कर देती हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिया कितना होता है. ये जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया वो 1 माइक्रोस्पोरेंजिया है. ठीक है, ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे. तो चलो हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर्स देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, तो ये रहा एपिडर्मिस, सिंगल सेल लाइनिंग से बना हुआ है. देन आफ्टर द सेकंड लेयर इट इज नोन एज एंडोथीशियम. उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम.
ओके, तो यहाँ पे ये जो सेल्स है वो एंडोथीशियम के सेल्स है। उसके बाद आएगा मिडल लेयर ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे कुछ सेल्स के लेयर होंगे जिसको हम लोग मिडल लेयर बोलेंगे, फ्यू सेल्स लेयर्स होंगे जिसको हम लोग मिडल लेयर बोलेंगे। एंड देन आफ्टर इट इज फॉलोड बाय द टेप्टम। ओके, तो आगे जो है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन का। वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। अब बात है टेप्टम की। सो जो टेप्टम होता है वो जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू है उसको सराउंड करता है। ओके, वो इनर मोस्ट वॉल है। इज द टेप्टम इज द इनर मोस्ट वॉल। ये जो इनर मोस्ट वॉल है, it nourishes the developing pollen grains. So this is the function of the tectum, that it nourishes developing pollen grains. Okay, it nourishes the developing pollen grains. So this is the function of the teptum. As well as if the cells of the teptum is bears the more than one nucleus. Okay, so in the teptum the cells bears the more than one nucleus. टेप्टम के सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या शो किया है, जैसे ये प्रोसेस खत्म होगी, पोलन ग्रेन्स जनरेट हो जाएंगे, तब ये जो एंथर है वो डेहिसेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेहिसेंट का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक क्लीवेज दिखेगी जहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। अगर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा हो, अगर आप एंथर को टच करते, अगर आप एंथर पोर्शन को टच करोगे तो आपके हाथ में कुछ येलोइश कलर का डस्ट वाले पार्टिकल आपके हाथ पे स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स है वो है पोलन ग्रेन्स। ओके, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। Let's understand the process of the microsporogenesis. अब देखो, जीनेसिस का मतलब क्या होता है? That means synthesis. And microspores का मतलब क्या होता है? That means पोलन ग्रेन्स जनरेट करना। एंड दैट पोलन ग्रेन्स bears the male reproductive cell, that means male gamete. अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस स्टार्ट किससे होता है? सो इन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस there is a sporangineous tissue is present, right? Into the anther, you all know that inside the teptum, जो teptum है उसके अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिनियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज। These sporogenous tissues is undergoes into the meiotic divisions.
Okay, this sporogenous tissues is undergo the cells of the sporogenous tissues. इसके जो भी सेल है, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू का कोई भी हम एक सेल ले लेते हैं. चलो, द सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू. सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले, सबसे पहले ये एक सेल है. ठीक है. It undergoes into the meiotic division. So after the meiotic division, how many cells are produced? There are 4 cells produced after the meiotic division. ठीक है. तो यहाँ पे भी कितने सेल बनेंगे? 4 सेल जनरेट होंगे. और ये जो कंडीशन है हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. This all bears the n number of the chromosomes. Okay, this is known as a microspore tetrad. अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो जो सेल में से बनता है, ओके, दैट इज नोन एज अ पीएमसी. तो ये सेल में से बना स्पोरेंजिनियस टिश्यू के, जो सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और उसमें से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, वो सेल को हम लोग बोलते हैं पीएमसी. क्या बोलते हैं हम उसको? PMC. That means the pollen mother cells. The full form is pollen mother cell. तो pollen mother cell में से meiotic division होके माइक्रोस्कोप टेट्राड जो है वो जनरेट होते हैं. अब ये माइक्रोस्कोप टेट्राड जो है, एज अ एंथर इज मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर टेट्राड इज डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स. ओके, सो एज द एंथर मैच्योर्स, क्या होगा? एंथर मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट होगा. एंथर जो है वो मैच्योर हो जाएगा एंड डिहाइड्रेट होगा. जब ये कंडीशन होगी तब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे. तब क्या होगा? Microspore tetrad dissociate and develop into pollen grains.
So inside the each microsporangium, the several thousands of the microspores or the pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther. मतलब कि जब एंथर dehiscent होगा तब ये पोलन ग्रेन्स जो है वो उसमें से रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ द माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन आफ्टर ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके उसमें से पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ये पोलन ग्रेन्स उसके बाद रिलीज हो जाएंगे जब एंथर डेहिसेंट होगा तब। ओके, तो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स जो है वो जनरेट होते हैं और पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बिकॉज द पोलन ग्रेन्स are the microspores. So we can say that it is the synthesis of the pollen grains. So it is a microsporogenesis process, formation of the pollen grains. ओके, सो यहाँ पे पोलन ग्रेन का सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन। तो अगर हम पोलन ग्रेन के बारे में देखें तो पोलन ग्रेन्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप एंड कलर्स एंड डिजाइंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स आपको दिखते हैं। यू कैन सी द वेराइटीज इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स। मेनली आपको किसमें वेराइटीज दिखेगी पोलन ग्रेन्स में? So you can see the varieties तो आर्किटेक्चर में आपको साइज में, शेप में, कलर में एंड डिजाइन्स में वैरायटीज दिखेगी। ओके, so this is seen into the different species. The sizes, shape, color और डिजाइंस में आपको पोलन ग्रेन्स के डिजाइंस में आपको वैरायटीज दिखेगी जो डिफरेंट स्पीसीज में दिखेगी। ठीक है, मतलब फिर आप ऐसा सोचो कि हिबिस्कस के अलग अलग फ्लावर में अलग अलग साइज और शेप की पोलन ग्रेन्स होगी, तो ऐसा नहीं होता। बट डिफरेंट फ्लावर्स की पोलन ग्रेन्स के शेप में, साइज में, कलर में फर्क हो सकता है। ओके, चलो अब हम पोलन ग्रेन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ दी जनरली द स्पेरिकल शेप इट हैज। ओके, सो जनरली पोलन ग्रेन्स के पास स्पेरिकल शेप होता है और उसकी साइज में आपको बता दूं तो साइज उसकी होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो 25 to 50 माइक्रोमीटर जितना डायामीटर होता है
कि पोलन ग्रेन के अराउंड कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, so look at here, the outer layer of the pollen grain, it is known as a exine. पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है हम उसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ द केमिकल सब्सटेंस नेम्ड एज स्पोरोपोलेनिन। Okay, this substance it is resistant to the chemicals, temperature and strong acid, strong alkali जैसे chemicals जो होते हैं उसके सामने ये withstand कर सकता है। हाई टेम्परेचर होता है उसके सामने भी ये withstand कर सकता है। So we can say that it is a highly resistant. It is a highly resistant to high temperature, strong acid और alkali, तो इन सब से ये जो एक्साइन है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि इन सब के उसके ऊपर असर होती नहीं है। तो वी कैन से दैट कि ये जो पोलन ग्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज कोई भी एंजाइम ऐसा अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है जो एंजाइम को ब्रेक डाउन कर पाए। ओके, नाउ इंटरनल सो द इंटरनल मेम्ब्रेन इट इज नोन एज इंटाइन। जो अंदर की वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। आउटर वॉल एक्साइन है तो अंदर की वॉल क्या है? इंटाइन है। ठीक है, अगर हम आउटर वॉल के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे आपको एक पोर दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ये जर्म पोर में से पोलन ट्यूब जनरेट होगी। फ्रॉम दिस जर्म पोर pollen tube is generates. Okay, इंटाइन जो है वो एक्सटेंड होता है। ओके, इस तरीके से एंड देन वो आगे आगे एक्सटेंड होता जाता है। जब वो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है उसके बाद तब हम उसको बोलते हैं कि उसने क्या बना दिया है? पोलन ट्यूब बना दिया है। ठीक है, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो पोलन ट्यूब का साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो वैक्यूल्स है। ठीक है, ये सब वैक्यूल्स है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन सेल इट इज द वेजिटेटिव सेल, which bears the vegetative nucleus, and the another cell it is known as a generative cell which bears the generative nucleus. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होंगे। एक होगा वेजिटेटिव सेल which bears the vegetative nucleus, and the another one is the generative cell which bears the generative nucleus. Okay, 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। ओके, पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ हो जाती है। बाकी कितने बचे?
40% एंजियोस्पर्म बचे, जिसमें ये शेड होती है 3 सेल्ड कंडीशन में। थ्री सेल्ड स्टेज। अब 3 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके 2 मेल गैमेट के अंदर डिवाइड होगा। द जनरेटिव सेल इज डिवाइड माइटोटिकली। माइटोटिकली वो डिवाइड होगा और किसके अंदर जनरेट होगा? 2 मेल गैमेट के अंदर जनरेट होगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस 2 मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो टोटल कितने सेल हो गए? 1 इज वेजिटेटिव सेल, अनदर 2 आर द मेल गैमेट, सो 2 + 1 दैट मीन्स अ 3 सेल्ड स्टेज। तो 40% में वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, शेड ऑफ होता है, अदरवाइज वो 60% में वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 3 सेल्ड कंडीशन कभी आएगी ही नहीं? आएगी। ये जिसमें 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है, वो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होता है, अगर स्टिग्मा उसके लिए रिसेप्टिव है तो उसमें से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और तब उस टाइम पे जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट के अंदर डिवाइड हो जाता है, और वो डिवीजन कौन सा होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। इज इट क्लियर? चलो अब देखो, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स वो उसकी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो एलर्जीज कॉज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस होते हैं। ओके, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज भी होते हैं। So the pollen grains of the pollen grains of many species of the plant cause severe allergies, for example asthma, and bronchitis, etc. ओके, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन से। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उसमें 2 स्पीसीज के आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो नॉर्मली इस टाइप की एलर्जीज करते हैं। तो उसमें से एक है पार्थेनियम और दूसरा है कैरेट और पार्थेनियम, और हम उसको one species is given, that is the Parthenium, or it is known as a carrot grass. तो ये एक्चुअली इंडिया में एज अ कंटामिनेंट आए थे विद द इम्पोर्टेड वीट। सो इम्पोर्टेड वीट के साथ
ये एज अ कंटामिनेंट इंडिया में आए थे और फिर वो उसका अकरेंस जो है वो स्प्रेड हो गया और उसके बाद ये जो पोलन ग्रेन्स है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एलर्जीज देखने मिली। तो ये तो हुई एलर्जी की बात, बट पोलन ग्रेन्स जो है वो यूजफुल भी होते हैं बिकॉज ये पोलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिटिव। Pollen grains are very nutritive. So we can say that the pollen grains are rich in nutrients. So it becomes a fashion, we can say that it becomes a fashion to from the past many years that the pollen tablets are used as a food supplement. Okay. So, in Western countries, the large number of the pollen products into the form of the tablets and syrups, not only tablets but also in syrup, it's available into the market. Okay, and the persons are consume it as a food supplement because it is a highly rich in nutrients. So, कुछ एथलेट्स जो होते हैं या जो हॉर्स रेस के जो हॉर्सेस होते हैं उनको ये सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी पावर जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स। So the viability of the pollen grains, it is differ into the species after the shed off एंथरडेhiscent के बाद जब पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाएगी फिर वो कितनी टाइम तक वायबल रह सकती है, तो वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करता है। अलग अलग स्पीसीज की पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं कि सीरियल्स के बारे में हम बात करें तो सीरियल्स में वीट की पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करें या राइस की पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करें तो इसकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स। ओके, तो हम कुछ फैमिली की बात करते हैं, प्लांट की सर्टेन फैमिली की बात करते हैं। तो जैसे कि रोजेसियाई, सोलेनेसियाई, and Leguminosae.
तो अगर मैं ये फैमिली की बात करूँ तो इसकी जो पोलन ग्रेन्स होती है वो उसकी वायबिलिटी होती है 4 मंथ्स। सो कुछ मंथ्स तक वो वायबल रह सकते हैं। अब वायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो इट इज डिपेंड्स ऑन temperature and humidity। ओके, सो एट सर्टेन एक्सटेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। अब आप लोगों ने सुना होगा सीड बैंक के बारे में, राइट? फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जो आर्टिफिशियल सेमिनेशन होता है, तो आर्टिफिशियल सेमिनेशन में जो स्पर्म्स होते हैं, जो सीमेन होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, राइट? सो उसी तरीके से पोलन बैंक्स भी होती है। जैसे सीड बैंक्स में सीड को स्टोर किया जाता है, ठीक है? स्पर्म्स को स्टोर किया जा सकता है, उसी तरीके से पोलन बैंक्स भी होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ओके, तो पोलन ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है? तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। ओके, इट इज स्टोर्ड इनटू लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, सो ये हो गई वायबिलिटी की बात। तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि वीट के साथ जो इम्पोर्टेड वीट के साथ जो कंटामिनेंट्स आए थे जिसकी वजह से एलर्जीज प्रोड्यूस होती थी, उसका नेम क्या है? सो दैट इज द पार्थिनियम और वी कैन से द कैरेट ग्रास, ठीक है? सो विच काइंड ऑफ द डिजीज, विच काइंड ऑफ द एलर्जीज seen due to the pollen grains? So asthma and bronchitis। ओके, कुछ लोगों को स्नीजिंग भी होने लगता है पोलन ग्रेन्स की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट द पोलन ग्रेन्स आर वेरी रिच इनटू द न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर used as the food supplements. So in market it is available as a pollen tablets as well as the pollen syrups, जो एथलेट्स यूज करते हैं as well as हम कह सकते हैं कि जो एथलेट्स यूज करते हैं एंड जो रेस में जो हॉर्सेस होते हैं उसको उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए ये टैबलेट्स उनको दी जाती है। अब वायबिलिटी की बात करें तो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर होती है, जिसमें से आपको NCERT के अकॉर्डिंगली 2 एग्जाम्पल्स याद रखना, एक व्हीट एंड राइस का और एक रोसेशियाई, सोलेनेशियाई एंड लेग्यूमिनेशियाई स्पीसीज के फैमिलीज के एग्जाम्पल याद रखने। ये फैमिली के अंदर जितनी भी स्पीसीज आती है वो उनकी जो पोलन ग्रेन्स है वो फ्यू मंथ्स तक वायबल रह सकती है, ठीक है? और ये जो वायबिलिटी है वो जनरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक फैक्टर्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। और सीड बैंक्स के जैसे स्पर्म स्टोरेज करके रखते हैं, ऐसे जो पोलन बैंक्स होती है वो भी वो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि
in which the pollen grains are stored. So it is stored into the liquid nitrogen at a -196 degree Celsius. So यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं और माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी वायबिलिटी कैसी होती है और उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये जो टॉपिक है उसमें कवर अप हो जाता है.